Why Aligarh Muslim University is always there in news for, of course, bad reasons. What are the challenges India is currently facing, in transgressing from non-renewable source of energy to renewable source of energy? 3 कोई ऐसे देश जहां आप ट्रेवल करने नहीं जाना चाहेंगे. Can you please tell me who is an ideal civil servant? May I come in, sir? Please. Hi. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. बैठिए हरे कृष्ण जी. Thank you, sir. हरे कृष्ण जी अपने बारे में कुछ बताइए. So, myself is Hare Krishna Sharma. I belongs to Western Uttar Pradesh district, Aligarh. My roll number is 105766 and I am appearing twice in interview this time. This is your second interview? Yes, sir. Okay. Now, Hari, since you have done your electrical engineering, now could you please tell me what is the difference between MOSFET and the normal FET? So, this part is done in electronics engineering. Okay. My is electrical core engineering. So, I that is the have very electrical little knowledge core about this MOSFET and this all this. You have not read? Sir, I read in second semester, but not remember right now. Acha. Have you read what is relay and what is circuit breaker? Yes, sir. What is the difference between both? Sir, relay and circuit breaker both are the disconnecting device that interrupt the power supply when there is a fault in power lines. And the main difference is circuit breaker and relay is that circuit breaker's mechanism more complex and more automatic than the relay, sir. Okay. So can we also use some use of smart technologies to prevent some modern transmission loss? Yes, sir. In the recent year, the electrical technology is are used in the power transmission lines, mainly to curb the power losses and to curb the transmission losses. For example, if there is a fault in any line, then there is a smart technology, the sensor-based technology that can correct these power lines, sir. Okay, that means what are those technologies which are used? So exactly, I am not remembering these. Some SCADA technologies are there in market. Exactly, I am not aware about the details of this SCADA, but the SCADA technology is there, sir. Okay. Hare Krishna ji, since you are coming from Aligarh, there happens to be a very famous university there, Aligarh Muslim University. Why Aligarh Muslim University is always there in news for, of course, bad reasons? So I will say not because in democracy there is always a debate and dissent, and we should respect the other ideas as well. AMU is known for its education, and it is 9th university in the curriculum in the India, and AMU famous for its education since its inception. But there are some issues over like CA issue, issue on the nationalism and all this. So these are some issues. There happened to be a controversy recently with the portrait of Jinnah. Have you read about that? Sir, I have read this, but I am not aware too much about this. Do you really think that Jinnah should be celebrated, or you can say proliferation of such ideas which accommodates the aspiration of Jinnah must be respected in that context? So I will say India is a secular country and India is a democratic country. So the positive idea of any leader apart from Pakistan or Hindustan should be accommodated in any university because it opens the liberal base of the aspirant of the student. And if the ideas are harmful to the sovereignty and integrity of India, then they should be must curtail these. Okay. Something related to sedition actually happened very recently. The Supreme Court of India has actually done away with the furthermore cases must not be registered. A new law has been passed called Bharatiya Nyaya Sanhita 150. In that context, and sedition expression has been removed. Now, what was the so controversial segment in the law which was there? Sir, I am not aware too much about it. If you allow me, I can. Please. Sir, basically the sedition case was a colonial legislation
which were introduced by the British government to curtail the nationalism and nationalist feeling that time. And right now we are in the Amrit Kal. So the government of India is trying to decolonize these laws, and the article, the section 124 that was dealing the sedition charge is removed by Bharatiya Nyaya Sanhita section 150, and Supreme Court is saying that the sedition charge should be not imposed just only the basis of few excuses that the government sometimes try to impose this. So Supreme Court reasoning that it should be very rational behind the sedition charge or imposition of sedition charge. But I am not aware only of this. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, Yes, ma'am. why an engineer wants to come into administration? Ma'am, administration provides the wider opportunity, wider platform, and respect the different ideas that of different branches like engineering, commerce, MBBS. So it's provide a larger platform to utilize the capabilities and the capacities of engineers. So didn't you go for placement opportunities in your college, or there wasn't any placement opportunities? Ma'am, I have made my mind to go for the civil services right from my third year, ma'am, and I didn't participated in a placement drive, ma'am. Okay. So what are the learnings of as an engineer you are going to use it when you become an administrator? Ma'am, the application part of engineering we can utilize in the administration. For example, I am an electrical engineer, and right now in Uttar Pradesh particularly, there is a power shortage, and this power shortage is due to not as per the generation. The point is that the people are not aware about the power conservation and conservation. So I can aware our staff, where I will post it. I can mass drive to how aware the people about the conservation of power, like using the LED bulb over the normal bulbs, and use the better use of the power equipment, ma'am. And apart from this, I can utilize my knowledge in the electrical vehicle and all this, ma'am. What are the challenges India is currently facing, in transgressing from non-renewable source of energy to renewable source of energy? Ma'am, recently COP28, India has endorsed that we are in favor of phase down, not phase out, and India is facing the power generation in terms of renewable energy that, ma'am, we have lack of technology, like in solar, like in wind. Apart from that, these technology initially have a higher cost. India is a developing country, and our most of generation is more from the conventional source like coal. So it is not easy to phase out everything. So there is a transition, and we are moving in that direction. What is ethanol? Ma'am, ethanol is a biofuel. Actually, ethanol is the C2H5OH, the alcohol group, and it is considered the biofuel, ma'am. Okay. So is it feasible to completely rely on ethanol as of any other non-renewable source of energy? No, ma'am. We cannot rely only one source. Government of India and Government of UP believe in the energy mix, ma'am. So we should not rely on one particular source, because ethanol depend on the sugar, mainly sugar and all this. And recently there is a crisis in sugarcane. So we cannot completely rely on this one. Okay. Tell me, Hare Krishna, that there are certain programs and policies going for specifically for empowering women of UP, right? And related to that, there is one mission going on, that is Mission Shakti. Yeah? So what is this Mission Shakti? Ma'am, Mission Shakti is the Government of UP is a flagship program to empower the women, and its main approach is to empower them by skilling them, by protecting them, by providing them the ample opportunity of employment. I think protection of women is the most important thing, which is still UP government has to work. Do you think so? Ma'am, yes, because it is. So there is serious problem with the law and order, specifically if we see in case of women in UP. Ma'am, recently the NCRB data said that one of the largest crime related to the women in UP. But Uttar Pradesh government is trying to best to curb these challenges.
and police helpline number. I am not remembering that number. Pink booth and the anti-Romeo squad and all these initiatives that the Uttar Pradesh government is trying to curb these cases, ma'am. And recently there's a report that Uttar Pradesh has the first rank in to dispose of the cases related to the Uttar Pradesh the women issues, ma'am. Like mainly the women crime, ma'am. Okay, thank you, Hari. हरे कृष्णा, सबसे पहले ये बताइए, ट्रेवलिंग आपकी हॉबी है। यस सर। 3 कोई ऐसे देश जहां आप ट्रेवल करने नहीं जाना चाहेंगे, यानी कि अगर एक लिस्ट बनाएं आप, तो आखिरी 3 देश कौन होंगे? सर मैं सोमालिया नहीं जाना चाहूँगा, मैं अफ़गानिस्तान जाना नहीं चाहूँगा, और सर मैं इराक जाना नहीं चाहूँगा। और आपको पूरी सुरक्षा मिले तो सर मैं सोच सकता हूँ। सोच सकते हैं, मतलब सुरक्षा का मसला है। यस सर। ठीक है। यहाँ पर दिखाई देता है कि आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जीडीपी में आपने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इतने लंबे समय से, या ठीक नहीं है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता, बिकॉज जब मैं तैयारी करने उतरा था तो 2015 से मैंने मेंस देना स्टार्ट किया और अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया, बट मैं 2017 से वर्किंग हूँ एक प्राइवेट कोचिंग में एज अ कंटेंट इवेल्युएटर और एकेडमिक काउंसलर। तो आई एम पेइंग द माई TDS to the government of Uttar Pradesh, and indirectly I pay the indirect tax to the government, so it is indirectly paying the GDP as well. तो आपने कहा कि आप शुरू से ही मेंस दे रहे हैं जब से तैयारी शुरू की, तो ऐसा लगता है आपको किस बार आपका हो जाएगा? सर आई एम होपफुल कि होना चाहिए, अब देखिए क्या होता है। ठीक है। एक सवाल है, जब से कोरोना आया हमने देखा वर्चुअल समिट बहुत हुए। अभी संसद पे हमने देखा सुरक्षा पर सेंध किस तरह से लगाई गई। क्या हम संसद के सत्र को वर्चुअली करा सकते हैं? सर कोरोना एक महामारी थी, उस टाइम पे हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर इशू था, तो वर्चुअल समिट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। संसद का सत्र होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एक वर्चुअल समिट करते हैं संसद की, तो कुछ लोग तमिलनाडु में, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ लोग पंजाब में हैं, तो देयर इज अ कनेक्टिविटी इशू, हो सकता है सैटेलाइट का कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत आए, तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनको पार्लियामेंट में ही होना चाहिए तो बेटर रहेगा सर। मतलब इंटरनेट वाले इशू तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। यस सर। उसके अलावा कोई इशू? इसके अलावा मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या जानते हैं इसके बारे में, कैसे बनता है? सर जो हाइड्रोजन है उसको हम यदि रिन्यूएबल सोर्स से बनाएं, रिन्यूएबल सोर्स को यूज़ करके बनाएं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। रिन्यूएबल सोर्स को रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करके, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल बनाते हैं हम, तो 2-3 तरह की हाइड्रोजन होते हैं, ब्लू। मेरा सवाल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। सर ग्रीन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का निर्माण जो है यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, तो अभी हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अभी हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है अभी उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है कि हम उसको, महंगी पड़ेगी। यस सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मैं भारत के एक ऐसे राज्य में निवास करता हूं कि मुझे आपकी भाषा आती है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके राज्य के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब 3-4 पॉइंट में आप मुझे अपने राज्य के बारे में परिचय देना चाहें राज्य का, तो क्या बताएंगे? सर मैं उसको बताऊंगा कि द माइटी गंगा हमारे राज्य से होकर बहती है, कृष्ण और राम की जन्मभूमि है, और हम जो है उत्तर प्रदेश में भारत की कल्चरल कैपिटल वाराणसी है। ये नहीं बताएंगे उसको कि भारत में कहाँ पर है उत्तर प्रदेश? यस सर, ये भी बताऊंगा। ठीक है सर। हरे कृष्ण जी, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? सर प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी आए थे तो एज ए प्रवासी वो भारत में आए थे, बिकॉज काफ़ी दिन वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। उनके आने को कमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्ट किया गया था। और ये जो डायस्पोरा हमारा है आउटसाइड द इंडिया, उनको अपने देश में कंट्रीब्यूट उनको उनके रूट से कनेक्ट करने के लिए उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज, उनके जो धन है, संपदा, उसको हम अपने देश के विकास में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए सर आयोजित किया जाता है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण जी, मान लीजिए शिक्षा, रोजगार, अपराध नियंत्रण और स्वास्थ्य, 4 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आप काम किस फील्ड में करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर ये चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं,
ये मैं तो कॉम्प्रिहेंसिवली इन पे सब पे काम करना चाहूँगा, बट प्रायोरिटी में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दूंगा। और उसके बाद तो सर मैं जब एजुकेशन दे दूंगा तो उनको एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड एजुकेशन देने का प्रयास करूंगा, जिससे अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। क्योंकि अपराध का एक मेन कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब एक वन ऑफ द रीजन है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल हरि जी, मान लीजिए आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी स्कीम आप लगाएंगे और उनसे उनको वहाँ पर कैसे लाभ पहुँचाएंगे? सर यदि ये सुविधाएं ऐसी नहीं है तो एक तो उत्तर प्रदेश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है जी। इसमें जितने भी ग्रांट्स है, जितने भी मेरे हद में जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं उनको मैक्सिमम वहाँ के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में सर सीएम ग्राम सड़क योजना चल रही है सर, साथ में ये आंगनवाड़ी के प्रोग्राम चल रहे हैं सर, मिशन कायाकल्प चल रहा है सर, इनको मैं बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। क्या है ये मिशन कायाकल्प? सर ये जो हमारे एजुकेशन हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल या जो भी 8th वाले स्कूल्स हैं, या उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सर व्यवस्था की गई है। अच्छा, और ये मिशन शक्ति क्या है जिसमें आजकल बहुत चर्चा में है? ये सर मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है सर। अच्छा, इसमें कैसे लाभ मिल रहा है सरकार, कैसे लाभ पहुंचा रही है महिलाओं को? मैं सर इस पे मिशन शक्ति में उनके स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का, उनकी सुरक्षा का, इन सब के माध्यम से उनको वो एम्पावर कर रही है, इसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री जी जब आए थे अयोध्या तो उन्होंने एक परिवार का दौरा किया था, क्यों किसी महिला से मिले थे वो जाकर के? एक परिवार की बड़ी चर्चा में था अखबारों में। सर मैंने वो न्यूज़ तो बहुत डिटेल में नहीं कवर की है, बट मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री का जो सपना है वो विकसित भारत बनाना है, और बिना नारी शक्ति के पार्टिसिपेशन के विकसित भारत। उज्ज्वला स्कीम क्या है? सर उज्ज्वला स्कीम जो हमारे बीपीएल परिवार हैं मेनली, उनको गैस चूल्हा प्रोवाइड कराना है, जिससे कि जो वो कन्वेंशनल जैसे वुड और जो उपलों पे जो खाना या वो बनाती थी, उनसे उनको छुटकारा मिल सके और उनका स्वास्थ्य जो है इम्प्रूव हो सके सर। कैन यू प्लीज टेल मी हु इज एन आइडियल सिविल सर्वेंट? सर इन माय व्यू आइडियल तो नहीं, पर मैं आइडियलिटी को मानता हूँ कि वो थोड़ा सा आइडियल है मेरे हिसाब से। नहीं, आइडियल, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट? सर आइडियल सिविल सर्वेंट में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इनोवेटिव होना चाहिए सर, ये मानता हूँ। थैंक यू हरिकृष्ण जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए हरिकृष्ण जी प्लीज। कैसा लगा आपको इंटरव्यू दे करके? सर मेरे को तो ठीक ठाक लगा, बट इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है, तो इम्प्रूवमेंट भी मैं करूँगा कुछ चीज़ों में। जैसे मिशन शक्ति के मुझे बहुत अच्छे कंपोनेंट थे, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ पा रहे थे। मैम ने पूछा, फिर आपने थोड़ा आंसर ब्रेविटी की थोड़ी कमी लगी, फिर इसीलिए दोबारा मैंने पूछा। हाँ। तो फिर थोड़ा सा और रिफाइन निकला। एक बार ये अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दीजिए प्लीज, इंग्लिश में जो आपने दिया था इंट्रोडक्शन, बोर्ड को सुनना है दोबारा। ओके सर, माई सेल्फ इज हरिकृष्ण शर्मा। I belongs to the Western Uttar Pradesh Aligarh district. My roll number is 105766 this time, and I appeared the interview in second time. अब हिंदी में दीजिए। सर मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मेरा रोल नंबर 105-766 है, और मैं इंटरव्यू में दोबारा अपीयर हुआ हूँ सर। इंट्रोडक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। ओके। आपको सीधे बताना है कि मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा है। ओके। मैं यहाँ से आता हूँ। वैसे तो नाम नहीं बता रहे हैं, वहाँ पर टोकन आपको मिल रहा है। हाँ। तो आपको अपना बिना नाम परिचय दिए आप वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। और अंग्रेजी थोड़ा कम यूज़ करिए, क्योंकि थोड़ा सा जैसे बिलोंग्स और बिलोंग ओके दोनों में थोड़ी सी दिक्कत है। ओके। है ना? तो वहाँ पर आई वुड एडवाइस पूरे बोर्ड को ये लगता है कि आप ज़्यादा सहज हिंदी में है, मुझे लगता है। हाँ सर ठीक है, मैं दोनों में ही सहज हूँ, पर कभी कभी हिंदी के मुझे टर्म्स कोई बात नहीं, इंग्लिश में यूज़ करेंगे ना टर्म्स। ओके। अगर हिंदी में अगर थोड़े से सहज नहीं है, इंग्लिश में शब्द अच्छे लगते हैं, तो इंग्लिश में आपका वो हैबिट है, तो इंग्लिश में बोलिएगा वहां पर जाकर के। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप जिसमें बेहतर हैं, ये बेसिकली आपके नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। ठीक है सर। ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो जिसमें आप सहज होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप जब प्रशासन में जाएंगे
तो आपको दोनों भाषा आनी चाहिए और आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो हिंदी में आप इंट्रोडक्शन अपना दीजिएगा और रोल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है ओके वहाँ पर कि मैं सर अलीगढ़ का हूँ, मैंने ये क्या रखा है, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, ओके बस वहाँ तक बोलना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन जैसे कि अननेसेसरी नहीं, क्योंकि फिर वहीं से सवाल आपके बनने लग जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो बोल के बताइए कैसे बोलेंगे एक बार। सर मेरा नाम हरे कृष्ण शर्मा है, मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ से की है और मैंने हायर एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब आपके अंदर आप वीडियो देखिएगा, दोनों में अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो दिस इज गुड, दिस शुड बी डन। ओके सर। और दूसरा, थोड़ा सा ब्रेविटी की ज़रूरत है, मतलब टू द पॉइंट एकदम आंसर। ठीक है सर। है ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में नॉन रिन्यूएबल है, तो अब अवेयरनेस वाले फ्रंट के ऊपर ओके। तो वो आपने जो उत्तर दिया, प्लस थोड़ा सा कोशिश करिएगा टू द पॉइंट। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि सवाल कभी पूछा तो बोर्ड मेंबर्स ने अगर आपसे सवाल पूछा तो इनफॉर्मल स्माइल नहीं देनी कभी भी। ओके। है ना, वो आप वीडियो देखिएगा, सर ने सवाल पूछा था, थोड़ा सा इनफॉर्मल स्माइल थी। ठीक है। तो गंभीरता से समझिए कि इंटरव्यू है और यही आपका मौका है जिसके अंदर आपको एक तरीके से सिलेक्शन लेकर के जाना है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनालिटी, बॉडी पोस्चर बहुत ही अच्छा लगा बोर्ड को। शूज़ पॉलिश कर लीजिएगा बढ़िया से, जी। और बाकी इन 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर काम करिए। ठीक है सर। और मुझे लगता है कि अंग्रेजी एक बैरियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा काम करिएगा, अखबार पढ़िएगा बोल बोल कर, ठीक है सर। है ना, न्यूज़पेपर को बोल बोल के पढ़िएगा। ठीक है सर। इससे थोड़े से शब्द आपके ज़बान पर आएंगे और वो फ्रीक्वेंसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो करीब आधी 1 घंटा ये हमारी टीम की तरफ से आपको सजेशन है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी कुछ और पूछना है आपको हरी सर जी? जैसे जब लास्ट टाइम मेरा जो अनुभव था तो वहाँ मतलब वो हिंदी में बात करना स्टार्ट कर बिल्कुल। मैं जहाँ हम लोग एक्चुअली ये जो फीडबैक है पिछले साल भी बच्चों के तरफ से आया था, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बड़े असहज हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि तुरंत बोर्ड मेंबर्स ने हिंदी शिफ्ट कर लिया, फिर इंग्लिश शिफ्ट किया। वो बेसिकली प्योरली आपको चेक करने के लिए आप कितने कंफर्टेबल हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है, आपको अंग्रेजी आती। जो सदस्य आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछे, दैट मीन्स आप उसको तुरंत उत्तर दीजिए उसी भाषा में, है ना। ठीक है सर। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो बाकी यू आर ऑलरेडी देयर। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काशी तमिल संगम जो है वो है प्रवासी भारतीय दिवस, बिकॉज 9 जनवरी आपका इंटरव्यू है। यस सर। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो उस पर उत्तर आपने अच्छा दिया। कायाकल्प आपने बताया, पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन कायाकल्प, सरकारी स्कीम के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं ठीक है। वो देख लीजिएगा। स्पेसिफिक यूपी स्पेसिफिक जो स्कीम चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, यस सर। ठीक है। तो ये सारे एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, इनको आप प्रिपेयर करके जाइएगा और बहुत ही सहज होकर के, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। यस है ना। यस। और अगर आप इन चीज़ों पर काम कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू आपके लिए कोई समस्या होगी। सर। बस मेंस में निर्भर करता है। आप तो जानते हैं कितना मार्क्स मिला था पिछली बार? सर मेरे को 70 मिला। 70 मिला था, तो बहुत बढ़िया है। हिंदी में ही चला था ना इंटरव्यू? हाँ सर, पूरा हिंदी में था। मैं आप इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छा बोलते भी हैं हिंदी में, और 70 से 75 से ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं। तो अपने मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज पर फोकस करिए, बाकी यू आर ऑलरेडी देयर। ठीक है सर। ओके, वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।